Hello everyone, I am Shruti from Yourpedia and today I am going to discuss about what to fill in your recruitment form of SBI for the post of Special Cadre Officer, right? So as you know that there are two posts, one is Assistant Manager and one is Deputy Manager. For Deputy Manager, you need experience, right? There is an experience requirement, and for Assistant Manager, you have experience well and good, but additionally they don't require any experience, right? So what important and why this form filling is so important is, let me tell you, first point, your experiences matter. Whatever you will write out of so many experiences, whatever you have gained over the years, the relevant ones should be included. So that is why you need a proper guidance for it and proper mentoring for it, what you have to include, what responsibilities you need to actually write in, so that because interviewer will focus on this biodata form, whatever you will fill, and the question will be asked based on that. So make sure whatever you write is relevant and correct. My second point, so there are two types of knowledge, one is behavior knowledge, one is your professional knowledge. Now behavior knowledge comes from your hobbies, interests, skills you have gained. That portion is also important for your interview. Second point is your profession, that we have already talked about, that is your experience. So whatever you fill is very important. Make sure if you have any doubts, any query regarding this interview form, you always contact us. You make sure you contact us on the number given below and reach out to us. Let us start whatever you need to fill, and I will explain whatever details that need to be filled in the form, right? Okay, this is your first page of the form. First page basically includes all your personal information. That is very simple and basic, so we will just dive right through it. Alright, so my first point is, whatever you write, make sure that has no spelling mistakes. Avoid any spelling mistake to avoid any kind of fuss later. And certificates needs to be, make sure your original documents are right there with you, so that whatever there is no spelling error, and also there is some time of error कि surname था मेरी certificate से में नहीं था, या even for your parents name, full name, what are their full name in the certificates, you have to mention that. Do not mention just like that, just you are aware of their full name, right? I hope you get my point. So let's start from your date, name of post, post senior number, choice of language for the interview, whether it's English or Hindi, then your name in block letters, marital status, you're married, unmarried, very basic details, date of birth, place of birth, district, state, nationality, religion, father's, husband's name, whatever applicable is applied for you, their occupation, mother's name and their occupation, nationality, father, mother and husband, wife, इन सब की nationality आपको mention करनी है, place of birth mention करना. अगर आपके लिए, if you're not married, just write not applicable here, n/a, district, state, category आप टिक कर सकते हो, आप कौन सी category से belong करते हो, if it's that applicable. Now comes to your the second page. If you are physically challenged person, give details. अगर ये चीज़ आपके लिए applicable है तो आप डिटेल्स दे सकते हैं कि if you are physically challenged. सेकेंड है आपका, क्या आप माइग्रेंट और डिस्प्लेस पर्सन है, कहीं से आए हैं, वेस्ट बंगाल, एनीवेयर, है ना, आप पर्टिकुलर्स दे सकते हैं. दैट इज नॉट एप्लीकेबल, यू कैन से NA. एक्स सर्विसमैन है अगर आप, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी जो रिटायरमेंट शीट है या डिस्चार्ज शीट है उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. मदर टंग आपकी क्या है वो आप मेंशन करें, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर इज योर मदर टंग. ओके, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नोटिफाई कर देती हूँ. इन्होंने लैंग्वेजेस पूछी है अदर देन इंग्लिश. इंग्लिश के अलावा जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट आप वो मेंशन करो. आप मेंशन कर सकते हो इंग्लिश, हिंदी, पंजाब, सॉरी नॉट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, एनीथिंग, बट नॉट, आप ये नहीं मेंशन कर सकते कि मैं पहाड़ी में प्रोफिशिएंट हूँ, दैट इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. आप ये नहीं मेंशन कर सकते कि मैं हरियाणवी में प्रोफिशिएंट हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो आप यहाँ पे हिंदी कर सकते हैं. अगर आप स्पीकिंग में प्रोफिशिएंट है तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, आप उसे भी टिक करो. एग्जामिनेशन पास इफ एनी में हमें क्या लिखना है. सपोज मैंने हिंदी 12th तक पढ़ी है, ठीक है, तो मैंने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक अपनी, इंटरमीडिएट एजुकेशन तक अपनी प्रॉपर हिंदी पढ़ी है एंड मेरे पास उसके ग्रेड्स भी हैं, तो मैं अपने इंटरमीडिएट एजुकेशन यहाँ लिखूंगी और उसका ग्रेड्स भी लिख सकती हूँ, है ना.
सिमिलरली अगर आपने, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पंजाबी मास्टर्स या बैचलर्स तक भी पढ़ी है, उनका सब्जेक्ट रहा है वो, तो आप वो एग्जामिनेशन का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। 9th पॉइंट आता है आपका डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख रखा है, प्लीज एनक्लोज कॉपीज ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स। जो भी आप यहाँ डिटेल्स एंटर करोगे, आप मेक श्योर करोगे कि आप उसकी मार्कशीट, आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी मार्कशीट हो। अगर आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट नहीं है, आप वो इंक्लूड मत करना, बिकॉज वो वैलिड ही नहीं होंगे। गॉट इट? सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन आप अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन मतलब बैचलर्स, जो भी इसमें भी आपने बैचलर्स करी है, यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हो, मंथ और पासिंग ईयर लिख सकते हो, टोटल मार्क्स वॉट एवर यू टोटल मार्क्स यू अटेन्ड दैट, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए थे, टोटल मार्क्स क्या थे, परसेंटेज और ग्रेड क्या रहा है आपके उन क्वालिफिकेशन में, आप वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या मेंशन कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने मास्टर्स के बाद भी डबल एमए कर लेते हैं, एमए नहीं करते तो पीएचडी परस्यू करते हैं, पीएचडी नहीं करते तो एमबीए परस्यू कर लेते हैं। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो मेंशन कर सकते हो। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन में आप क्या मेंशन कर सकते हो। सपोज मैंने अपनी मास्टर्स के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया, राइट, वो मेरा सर्टिफिकेट है आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं वो डिप्लोमा मेंशन कर सकती हूँ। और उसके बाद जो जो उन्होंने अपने सेक्शंस दिए आपको वो मेंशन करने हैं, सेम एज बिफोर। यहाँ आता है हमारा 10th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एक्सपीरियंस डिटेल्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है, इतना रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही क्यों मेंशन करना चाहिए हमें। और इसमें भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि हमें सर्टिफिकेट, जिनके आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास उनका लेटर है, सब चीज़ है, आप सिर्फ वही मेंशन करना, नहीं तो वो वैलिड ही नहीं है। मेक श्योर क्योंकि वो आपको अटैच करने हैं बाय द एंड ऑफ द फॉर्म। नाउ अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स या जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रखा है। मैं कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करी थी, फिर मैं सेल्स मैनेजर साइड चली गई, या मैंने एडमिन डिपार्टमेंट में काम किया है, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करने लग गई। ऐसे मेरे पास डिफरेंट मेरे पास एक्सपीरियंसेस आ गए। अब क्या है, एसबीआई ने एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स अपनी दे रखी है पोस्ट के अकॉर्डिंग। आप मेक श्योर करें यू रीड दैट, यू फॉलो देम थ्रू। क्या प्रॉब्लम है, अब आप सिर्फ रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस ऐड कर रहे हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट और आपके एक्सपीरियंसेस मैच कर रहे हैं, वो रेलेवेंसी आप देख पा रहे हो, अब वो यहाँ पे मेंशन करोगे। कहाँ मेंशन करोगे, ये नेम और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर हो गया, ये पोजीशन होगी, ये नेचर ऑफ ड्यूटीज होगी। सपोज मैंने अपना टाइटल मेंशन कर दिया मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने अपनी नेचर ऑफ ड्यूटीज मेंशन कर दी। क्या वो एसबीआई की रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट है? अगर इफ यू आर वेरी मच डाउटफुल कि मैम इज इट रेलेवेंट और नॉट, मैम मेंटर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ मी, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आप गाइडेंस ले सकते हो प्रॉपरली हमसे। एंड नेचर ऑफ ड्यूटीज और पोजीशन, हम उस अकॉर्डिंग हम रेलिवेंट डिटेल्स आपके पिक कर सकते हैं आपके प्रोफाइल से, एंड वी कैन ऑलवेज मेंशन फ्रॉम और टू। आपको बताइए कि आपने कब काम शुरू किया, कब एंड किया, ईयर्स और मंथ कितने ईयर्स, 1.5 ईयर 7 मंथ्स किया, 1.5 ईयर्स कितने मंथ्स किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमारा जो 11th और 12th पॉइंट आता है वो क्या है? फर्स्टली जो आपके नेक्स्ट बिलो पॉइंट्स है उसमें सर्टिफिकेट्स अलाउड नहीं है, मतलब नॉट अलाउड, रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज द राइट टर्म। सो अगर आपके पास आपने ट्रेनिंग कर रखी है ना बैंकिंग सेक्टर में, कोई एडिशनल सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ले लेता है, कोई कोर्स अटेंड कर लेता है, अगर आपने ऐसे एज सच कोई चीज़ अटेंड कर रखी है, प्लीज़ आप वो यहाँ लिख सकते हो, आपको इसके लिए सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने जस्ट इन केस यू हैव जस्ट अटेंडेड इट, यू कैन ऑलवेज मेंशन इट हियर। सिमिलरली आपके स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे दे हैव नॉट मेंशन दैट, सो आप वो भी लिख सकते हो। सपोज हॉकी प्लेयर रहे हो आप, अपने कुछ भी रहे हो आप, पर्टिकुलर्स हैं आपके पास उस चीज़ के, तो आप वो यहाँ लिख सकते हो। ओके, हॉबीज एंड अदर इंटरेस्ट, ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज का कि आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। वो कहाँ से आता है? जो आप फिल करते हो एग्जैक्टली अपने फॉर्म में, आप क्या फिल करते हो, किस बेसिस पे फिल करते हो, ये प्लीज ध्यान रखें। एक तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जस्ट फॉर राइटिंग कि मेरी हॉबी ये है, ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, बट उन्होंने लास्ट ट्रैवल 7 मंथ्स पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले किया होता है। क्या वो ट्रैवलिंग आपकी हॉबी हुई? दैट इज नॉट अ हॉबी। एक ऐसी चीज है जो आप फ्रीक्वेंटली करते हो, तो मेक श्योर यू मेंशन समथिंग दैट इज फ्रीक्वेंट। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आप इन फ्यूचर परस्यू करना चाहते हो, राइट?
सो आप उस अकॉर्डिंग लिखें, मेक श्योर आप रेलिवेंट चीज़ें ही लिखें। आई एम अगेन यूजिंग द टर्म रेलिवेंट, एडिशनल फॉल्सिफाई इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस इन फुल कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस इन फुल, आप प्रेजेंटली अगर आपका एड्रेस कोई डिफरेंट है आप वो यहाँ लिख सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। दोनों सेम भी है तो भी आप दोनों सेम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 पॉइंट, सॉरी, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। अब ये क्या इंफॉर्मेशन है? आपने कई एप्लीकेंट्स डिफरेंट सिटीज में मूव करते रहते हैं अपनी जॉब रिगार्डिंग, तो उनकी रेजिडेंट प्लेस का टाइम डिफरेंट होता रहता है, बट यहाँ पे स्पेशली मोर देन 1 ईयर्स लिखा है। 1 साल से ज़्यादा आपने कहीं लोकेट किया है तो आप उनका एड्रेस डिटेल्स दोगे, फ्रॉम टू एड्रेस इन फुल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस जहाँ जिस चीज़ के लिए भी आपने मूव किया। सपोज अगर मैंने 2020 से लेके 2025 तक एक ही जगह रही हूँ, मैं अपने घर ही रही हूँ और मेरा ऑफिस बहुत पास था, तो मैं वो भी यही मेंशन करूंगी कि मैं पिछले 5 साल इतने से इतने टाइम पीरियड में यहीं रही हूँ। 5 ईयर्स की तो आपने मेंशन करनी ही करनी है। 15 पॉइंट, ओके, सो ये सारे जो पॉइंट्स है मोस्ट ऑफ द मैं कह सकती हूँ एप्लीकेंट्स के नॉट एप्लीकेबल रहेंगे, बट जिनके एप्लीकेबल रहेंगे उनके लिए है पर्टिकुलर्स ऑफ, अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ से कोई भी ऑफेंस करते हो, पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन है, कन्विक्शन है, कुछ भी है ना, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज अपने कोर्ट ऑफ लॉ के आपके पास है करंटली, आप चार्जेबल हो उस चीज के लिए, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल करोगे। नीचे वाला पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है? बैंक्स और सपोज आपने लोन नहीं कोई पे किया, बैंक के चार्जेस हैं आपके ऊपर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चार्जेस हैं आपके ऊपर, सो उसके पर्टिकुलर्स आपने यहाँ फिल करनी है। अगर ये कोई भी चीज आपके पास एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA कर सकते हैं क्लियरली। 18th पॉइंट क्या है? 17th सर्विस कमीशन है। सपोज आप एग्जामिनेशन लाइक UPSC हो गई या फिर HPSC हो गई, कोई भी सर्विस कमीशन से आप डिस्क्वालीफाई हो या डिबार्ड हो, डिपार्टमेंट जैसी अपने चीज एग्जामिनेशन बॉडी से हुए हो, तो आप वो चीज के भी आप पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिल करोगे। केस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूटेड पेंडिंग अगेंस्ट बाय योर प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर कोई भी आप ये कह सकते हो कि कोई भी चार्ज या कोई भी एक्शन आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने आपके रिगार्डिंग लिया है, या आपकी इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में गए हैं, या एग्जामिनेशन में हुआ है, तो आप उसके पर्टिकुलर्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन ना रखें, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। 19 पॉइंट हमारा क्या है? 19th में आपको 2 रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बस 2 जानकार के रेफरेंसेस यहाँ पे दे दिए। दे हैव स्पेशली सेटेड 2 रिस्पेक्टेबल रेफरेंसेस, नेम एंड ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल। आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का दे सकते हो, आप अपने मैनेजर का दे सकते हो, मैनेजर नहीं तो हेड ऑफ मे बी आप डिपार्टमेंट का दे सकते हो, HOD का, HOD नहीं है आपके तो आप अपने CEO का दे सकते हो। आप 2 कोई भी इजी रेफरेंसेस दे सकते हो, दैट विल बी एप्लीकेबल हियर, राइट। अब एडिशनल पर्टिकुलर्स आप कुछ भी चाहते हो जो आपके बैंक को पता होना चाहिए, आप यहाँ फिल करो एंड दैट्स इट। ये आपका बेसिकली बायोडाटा फॉर्म में सम अप हो जाता है। ये आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। बेसिकली उसमें वो यही कह रहे हैं कि आपकी डिटेल सारी ट्रू, करेक्ट और कंप्लीट होनी चाहिए टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई एम अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस विच मे इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयड इन द बैंक। मैं कहीं पे भी सर्व करने को तैयार हूँ इंडिया में। आप प्रॉपर डिक्लेरेशन रीड करना, उसके बाद अपने प्लेस, डेट और साइन दोगे आप कैंडिडेट को। दिस सम्स अप योर बायोडाटा फॉर्म। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज है, आपका एक और लास्ट पेज यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है, हम इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या है? लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स। अब लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स क्या है? आपके पास बायोडाटा फॉर्म होगा, आपको इसकी 6 कॉपीज चाहिए, राइट। अब मेक श्योर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करो कि आप पूरा का पूरा फॉर्म एक हैंड रिटन रफ ड्राफ्ट तैयार करो और एक मेंटर को दिखाओ, ताकि आपको बाद में ऑन द स्पॉट चेंजेस ना करनी पड़े उसमें। मेक श्योर आप एक प्रॉपर गाइडेंस लो। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड उसके बाद आप अपना फॉर्म फाइनलाइज करके उसके 6 कॉपीज लगा के वहाँ पे इनक्लोज कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपके पास इंक्लूडेड होंगी वो आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। डिटेल रेज्यूमे, इन्होंने एक डिटेल रेज्यूमे मांगा है। देखो रेज्यूमे आपका मैक्सिमम 2 पेजेस आई विल से,
एंड बट अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं कहूँगी सिर्फ रेलिवेंट इंक्लूड करना, सिर्फ वो मेंशन करना जो आपने यहाँ मेंशन करे हैं। डिटेल्ड रिज्यूमे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, समरी, ये सब इंक्लूड करेगा। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, ईमेल कॉपी आपने अटैच करने, आइडेंटिटी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एज, ये सारी चीज़ें जो जो इन्होंने पूछी हैं ये आप इनक्लोज करोगे, जो जो चीज़ें आपके पास है टिक करोगे और अटैच करोगे इस फॉर्म में आपके इंटरव्यू राउंड के लिए। एंड दैट्स इट। आई होप कि आपको ये बायोडाटा फॉर्म इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, कोई भी डाउट है आपको इस फॉर्म रिगार्डिंग, इन फ्यूचर आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।